یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہم سے برتر ٹیکنیکل صلاحیتوں کی وجہ سے CIA ہماری فراہم کردہ ان معلومات کا فائدہ اٹھا کر پہلے ہی اسامہ بن لادن کو شناخت کر کے اس تک پہنچ گئی. ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا شخص دوسری ایجنسیز کتنی پاورفل ہیں کہ ان کو پتہ چلا اور ہمیں نہیں پتہ چل سکا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سوال ذرا اس سے اب آگے چلا گیا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے اور انہیں کیا پتہ ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی جو خود مختاری جس کا اپنے شروع میں اشارتاً بات کی تھی، ہم نے اس کو جس طرح سے 10 سال پہلے سے گروی رکھا تھا، اب اس میں جتنے کمپرومائزز روز بروز ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کا منطقی انجام یہی ہونا تھا کہ وہ ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں کچھ. مطلب کہ وہ یعنی کہ وہ کام جو دنیا کے کسی ملک میں یا کسی حکومت جو ہے وہ اس سے نہیں ہو سکتا، وہ ہم سے کراتے ہیں اور کرا رہے ہیں، اور ہم باخوشی کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی ناراضگی سے کرتے ہیں. اچھا جہاں پہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خود کر لو. مگر مشاہدہ صاحب اس میں کس کو بلیم کریں گے آپ؟ یہاں کس کو بلیم کریں؟ لیڈرز تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک. بالکل دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم بھی لیڈرز ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، حکومت ہے. یہاں پہ پاکستان میں تو جو زیادہ تر رول ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے نا، ڈکٹیٹرز کا رہا ہے. تو اب سوال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. ذمہ دار اس وقت کی حکومت ہے، اس لیے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ہے، اور جو واقعہ ہوا ہے اس کو مطلب کہ وہ ایسے یعنی کہ حلق کی ہڈی ہے کہ یہ کہیں کہ ہمیں پتا تھا تو بھائی پتا تھا تو یہ وہ وہاں پہ کیوں تھا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پتا تھا تو تم کیا سو رہے تھے، ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے، میری اس پہ رائے ایک اور ہے، میں ذرا وہ بھی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو بالکل پتا نہیں تھا، آپ لوگوں کو کوئی نالج نہیں تھی، نہ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں، ہمیں واقعی نہیں پتا تھا، ہمیں ظاہر ہے نہیں پتا تھا. میں یہیں پہ فرید پاچا صاحب سے پوچھوں گی. فرید پاچا صاحب، کچھ چیزیں تو ہمارے پاس یہاں پریس ریلیز آ رہی ہیں، مگر ہائی سیکیورٹی آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان کو پتا ہو اور اپنے مفادات کی وجہ سے ہم لوگ نہیں یہ بات کہہ سکتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 44 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ان 44 گھنٹوں کے اندر بہت ساری سوالات پیدا ہو گئے ہیں. پوری قوم سکتے کے عالم میں ہے اور حکمران جشن منا رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے اور ہم اس سارے حملے کے اندر ہماری ایک بے بسی کی تصویر سامنے آئی ہے، اور یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمارے حکمران اس کو اپنی عظیم فتح قرار دے رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ قوم کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کرنے والی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے یہ سوالات سارے موجود ہیں. وہ اسامہ بن لادن تھا، وہ نہیں تھا، وہ کہاں مارا گیا، اس کو کہاں لایا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ کیا گیا، اس کا ان کو تو فائدہ ہے، یعنی بش اوباما کو وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور پھر یہ کہ یہ سارے. لیکن فرید پاچا صاحب، اگر فرض کریں آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، اگر آ کے لے گئے لوگ، مار گئے کسی کو، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ فریاض صلاحیت کی بات اگر نہیں ہے ان کے پاس تو یہ استعفے دیں یا گھر جائیں. یہ اس ملک کے عوام کو اتنا غیر محفوظ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنی فوج پر اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں. ہماری ایجنسیوں کے بجٹ جو ہیں وہ کسی آڈٹ کے اندر نہیں آتے. ہمارے حکمرانوں کے عللے تللے، ان کے شاہانہ اخراجات، ان کی بہت کرٹیسزم ہو گیا گورنمنٹ کے اوپر. بہت سارے سوالات ہم نے اٹھا دیا ہیں. جواب دینے کے لیے ہمیں جوائن کریں گی شمیلہ فاروقی، صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، مگر وقفہ لیں گے، اس کے بعد سے بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ.
गंभीर मसाइल होते हैं तो जवाब किससे चाहिए, हुकूमत से या उन एजेंसी से या सिक्योरिटी देने वाले इदारों से। मगर पाकिस्तान में इतना बड़ा वाक़या होने के बाद इतनी खामोशी क्यों रही है। एक और प्रेस रिलीज आज जारी हुई अब से कुछ देर पहले फॉरेन ऑफिस की तरफ से, उसमें एक दफ़ा दोबारा वही बात एंडोर्स की गई जो सुबह सदर पाकिस्तान ने वॉशिंगटन पोस्ट के अपने आर्टिकल में लिखी, जिस आर्टिकल में वो क्लियरली कहते हैं कि इतवार को होने वाले ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन नहीं था। और साथ ही साथ प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत उसामा बिन लादेन की मौत को दहशतगर्दी की जंग में एक इंतहाई अहम संग मील समझती है और हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारे से इंसाफ की कटाई तक लाने में संजीदा कोशिशें भी करते रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान मीडिया में गर्दिश करने वाली इन खबरों की सख्ती से तरदीद करती है कि हमें इस ऑपरेशन का इल्म था। एबटाबाद और इसके गिर्द का इलाका 2003 से इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुकम्मल निगरानी में था और इसी वजह से ISI के इंतहाई टेक्निकल ऑपरेशन की वजह से 2004 में यहाँ से अल कायदा का इंतहाई अहम लीडर गिरफ्तार भी हुआ। उसामा बिन लादेन का कंपाउंड के मुताबिक ISI ने मालूमात अमेरिका, CIA और दूसरी 2 एजेंसीज को 2009 से फराहम करना शुरू कर दी थी। इनमें कुछ गैर मुल्कियों की यहाँ पर आमदोरफ्त के बारे में मालूमात भी शामिल थी। ये तमाम बातें इस प्रेस रिलीज में लिखी गई हैं और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी रास्तों से दाखिल हुए जो रेडार की रेंज में नहीं आते। इन दुश्वार गुजार पहाड़ों और की वजह से और शदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिकी हेलीकॉप्टर रेडार की जद में नहीं आ सके, हमें पता ही नहीं चल सका और उसामा बिन लादेन को मार के अमेरिकी हेलीकॉप्टर वापस चले गए। शमीरा फारूकी साहबा, वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपकी हुकूमत है, आप लोग ओथ्स ले रहे थे, बातें कर रहे थे, इतना बड़ा वाक़या आपके मुल्क में हो गया, आप लोग सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, पर आचा साहब अभी ये कहते हैं अब तो रिजाइन कर दें आप लोग। फरिया, ये तो मेरा ख्याल है कि एक रेटोरिक बन गया है कि बात बात पे हमसे ये कहा जाता है कि हम रिज़ाइन करें और घर चले जाएं। मेरा ख्याल है कि हम इक़्तिदार में रहें ना या ना रहें, इसका फ़ैसला तो पाकिस्तान की आवाम करेगी और वो होगा अगले इलेक्शन में। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि कल जो वाक़या पेश आया जिसमें उसामा बिन लादेन की हलाकत सामने आई, डेफिनेटली ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। पेशरफ्त नहीं है शमीला साहबा, माजरत के साथ पेशरफ्त नहीं है, लड़ी जा रही है। पेशरफ्त नहीं कहें, पेशरफ्त नहीं है ये। नहीं, मैं वायलेशन पे भी आ रही हूँ। ये आपकी वायलेशन पे भी आ रही हूँ जी, मैं बिल्कुल वायलेशन पे भी आ रही हूँ फरिया। देखिए, बात ये है कि दुनिया का सबसे मतलूब शख्स, सबसे अहम दहशतगर्द, अल कायदा का सरगना अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे पाया जाता है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिस तरीके से कल दफ्तर खारजा ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया और अभी जो प्रेस स्टेटमेंट आया है, देखिए हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो किसी से कम नहीं है। दे आर सेकंड टू नन। नहीं, वो तो और अगर हमारी इंफॉर्मेशन ना दी गई होती, आप देखिए अगर हमारी है वो खुद कह रही है कि वी आर सेकंड, हमारे पास इतना नहीं मटेरियल था कि हम उनको चैलेंज कर सकते या पकड़ सकते। वी आर सेकंड टू CIA, दैट्स व्हाट योर प्रेस रिलीज इज सेइंग। देखिए ये तो एक हकीकत है ना, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने भी इस बात का एतराफ किया कि अगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का तावन नहीं होता, पाक का तावन नहीं होता तो ये ऑपरेशन ना हो सकता था और ये कामयाब नहीं हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि हमारी एजेंसीज का तावन रहा है। ये देखिए जो इंटेलिजेंस शेयरिंग पिछले एक साल में ज्यादा मजबूत हुई है, जो बात की है, मैं शायद सब आपसे जानना चाहती हूं, पाकिस्तानी अवाम को आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? वाकई सही कह रही हैं शमीना साहबा, गिलानी साहब की स्टेटमेंट आई कि हम लोगों की एजेंसीज बीच में हमने नॉलेज शेयर की। आज सदर साहब कह रहे हैं कि हमने संडे के ऑपरेशन में कोई मदद नहीं की। उसी वक्त जब वजीर आजम साहब ये बात कह रहे थे, अमेरिका में प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही थी, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को तब बताया जब हम बाहर निकल गए। ये हमने अभी चलाया शॉट, आप कहते हैं दोबारा चला देती हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ? देखिए, यही तो सवाल है। देखिए, पूरी कौम जो है वो बिल्कुल सख्ते में है और उन्हें कोई बात बताने को अभी तक तैयार नहीं। ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं ना अब तो 2 दिन में कुछ तो बताना चाहिए था। अच्छा, वजीर आजम साहब ने अभी 4 दिन पहले एक बयान दिया कि ये एजेंसियां जो भी करती हैं ये हमारे कहने पे करती हैं। अच्छा भाई, ठीक है, आपके कहने पे करती होंगी और वो करना भी आप ही के कहने पे चाहिए क्योंकि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं।
तो फिर आप उनका जवाब दे कौन है उनका, मतलब या अब एजेंसी खुद तो आगे जवाब नहीं देगी। ये आज इस वाकये का जवाब दे कौन है शमीला साहबा, मुझे ये बता दीजिए, ये जो हुआ है वाकया, इसका जवाब दे कौन है? देखिए फरिया बात ये कि पाकिस्तान में अगर हम इक्तदार के अंदर हैं और हमारे साथ जितने भी इत्तेहादी हैं, चाहे वो पंजाब में बैठे हुकूमत कर रहे हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पॉलिटिकल लीडरशिप अलॉन्ग विद जो आपकी अस्करी क़यादत है वो जवाब दे है ना पाकिस्तान के अवाम को। हम आंख मीच के कबूतर की तरह तो नहीं बैठे हुए या हम ये कहें कि नहीं जी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके जवाब दे हम नहीं है। डेफिनेटली जवाब दे तो हम ही हैं और हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी इससे पहले कि आप इस इशू पे जाएं कि जी आप हर चीज को गैरत का मसला बना लेते हैं। यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त हम तो ये पूछ रहे हैं, एक सेकंड फरिया, इस वक्त अमेरिका के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, आपकी जितनी भी इकोनॉमिक और मिलिट्री एड आती है यू डिपेंडेंट ऑन दैट नेशन। ये बात पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा whether you like it or not। ये कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है, इट इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत है फरीद पाचा साहब, हकीकत तो ये है कि आप डिपेंडेंट है एक मुल्क के ऊपर, तो फिर आप दें उनको इजाजत, वो आए आपके मुल्क में, दहशतगर्द आपने रखा है यहाँ पर। हाँ ये देखें ना, ये कितनी कमजोर बात की गई है और कौमी गैरत का, इन्हें तो गैरत का लफ्ज ही बड़ा अजीब लगता है। ये कहते हैं हर बात में ये गैरत की बात करते हैं, यानी बेगैरती की बात करें तो वो इन्हें पसंद आती है। यानी ये अमेरिका को ये लाइसेंस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चूंकि हम उनसे मांगते हैं, हमने उनके आगे हाथ फैलाया हुआ है, हम कशकोले गदाई लेके जा रहे हैं, इसलिए अब उसका राइट हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि उसके हेलीकॉप्टर आए और वो आकर हमारे कहूटा प्लांट से सिर्फ 10 मिनट पहले के एक इलाके के अंदर आकर वो एक ऑपरेशन कर जाए, तो ये उनका एक राइट बनता है। यानी इससे ज्यादा कम। और ये कि इस सारे मामले के अंदर ये कह रही हैं कि ये आलमी दहशतगर्द मारा गया। आलमी दहशतगर्द तो अमेरिका है, लेकिन सवाल यह है कि वो तो 2003 में भी मारा गया था, वो 2007 में भी मारा गया था। अब ये कितने यकीन से ये कहते हैं कि यहाँ पर ये वाकया जो है ये हुआ है, और ये सारी इस बात का यानी कौम अभी ये समझ नहीं रही कि ये हुआ क्या है और ये उसको ये हुआ। और शमीला साहब मुझे एक बात बताइएगा, इससे पहले मैं मुशाहिद साहब की तरफ जाऊं। एक बात फरिया, एक बात और मैं ये बात ये है ना कि ये कहती हैं कि बात बात पर हमसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं, और हम आपसे इस्तीफे, अगर आपके अंदर कोई शर्म गैरत हो तो आपको तो खुद देना चाहिए, कोई ना मांगे। ये शमीला साहब सवाल ये है कि आप मुझे ये बता दें कि मुल्क को किस्तों में बेचने के लिए आपको वोट नहीं दिए गए, इसलिए वोट नहीं दिए गए। जो वोट दिए गए वो लोगों ने सोच समझ कर दिए हैं। क्या आप कौमी खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दे, ये भी आपका राइट। शमीला साहबा आपने कहा कि हम पैसे लेते हैं एक मुल्क से, तो आप कितना लीवे उस मुल्क को देंगे? अगर आज अमेरिका को आपने ये इजाजत दे दी है, तो क्या खुदा ना खास्ता कहीं और से पैसे दे के कोई और मुल्क भी इजाजत ले सकता है आपसे? फरिया बड़ी माजरत के साथ हमने किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी कि वो आए और हमारे हुदूद की खिलाफ वर्जी करे। फरीद पराचा साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं गैरत और बेगैरती की, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि पिछले अदवार में ये हुकूमत में बैठे हुए थे और इनके बड़े बड़े रहनुमा जाके तालिबान की जो दहशतगर्द हैं उनकी नमाज जनाजा में जाके इन कैमरा सेशन दिखा चुके हैं, वो फुटेजेस इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट में दिखा चुके हैं। ये मैं नहीं करी, ये पूरी पार्लियामेंट जानती है। तो देखिए बात दोगली ना करें। अमेरिका की गुलामी कौन करता था ये सबको मालूम है, आज कौम को ये बातें ना करें। खुदारा इस मौके पे जब मुल्क एक ऐसे दौराहे पे खड़ा हुआ है जहां आपको मुत्तहद होना है, तो ये चीजें छोड़ दें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग छोड़ दें, ये रेटोरिक्स छोड़ दीजिए। पंजाब से रेमंड डेविस निकल जाता है, गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से अगर आपके उसामा बिन लादन निकल आते हैं, जमाते इस्लामी की हुकूमत वहां रह चुकी है। भाई आप बताएं आप क्या करते थे अमेरिका के साथ? जहाज क्यों नहीं करते जाके अफगानिस्तान के अंदर? भाई आप ये बातें ना करें बैठ के। आज पॉलिटिकल प्रोसेस में है नहीं, पार्लियामेंट में है नहीं, एक डिक्टेटर के साथ आप जाके वहां पर बैठे हैं। डिक्टेटर को आपने सपोर्ट किया है, ड्रोन अटैक का जिसने इजाजत दी थी उसको आप सपोर्ट करते रहे। क्या बात कर रहे हैं? परवेज मुशर्रफ साहब के पास भी चलेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि मामला क्या था। मगर मुशर्रफ साहब बात तो वो सही कर रही है कि पंजाब में भी ये हुआ था। अगर आप देख लें तो वहां से भी रेमंड डेविस साहब चले गए, राना सनाउल्लाह साहब का एकदम सस्पिशियस किस्म का बयान आना शुरू हो गया।